कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो मैं बनाने वाला हूँ ऑडियो वीडियो प्रोडक्ट्स पे, जो गवर्नमेंट्स में और इंटरप्राइजेस में एवी सिस्टम्स यूज होते हैं। उसमें एवी ऑडियो में क्या प्रोडक्ट्स हम यूज करते हैं, दैट वी कॉल इट प्रोफेशनल ऑडियो। सो दैट प्रोफेशनल ऑडियो वी यूज इन गवर्नमेंट्स इंटरप्राइजेस सेक्टर। तो आज हम उसी पे बात करेंगे। तो लेट्स बिगिन। एंड वन मोर थिंग, ये जो जो वीडियो रहेगी वो एवी टेक्नीशियंस, एवी इंजीनियर्स, एवी डिजाइनर्स सबके लिए यूजफुल रहेगी। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। तो चलो शुरू करते हैं। सो कंप्लीट ऑडियो वीडियो सॉल्यूशन, ऑडियो विजुअल सॉल्यूशंस में एक ऑडियो का पार्ट प्लस एक वीडियो का पार्ट होता है। इस वीडियो में हम ऑडियो के पार्ट पे बात करेंगे, क्योंकि वीडियो के पार्ट पे एक दूसरी वीडियो मैं बनाऊंगा, सो दैट धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ेंगे। सो अगर हम ऑडियो की बात करें तो ऑडियो में तीन स्टेप्स होते हैं एक्चुअली, फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट। सो दैट from the input side, whatever devices we use, we call it as a audio input devices. एंड इन बिटवीन वी यूज जनरली प्रोसेसिंग डिवाइसेस, जो कि माइक्रोफोन से जो भी इनपुट लेके उसको प्रोसेस करना, उसको प्री एम्पलीफाई करना, उसमें कुछ नॉइज रिडक्शन करना, वट एवर इट वी कैन से। सो जो भी उसका लाइन उसको माइक्रोफोन लेवल इनपुट को लाइन लेवल इनपुट पर ले जाना, ये सब हम प्रोसेसिंग डिवाइसेस का यूज करके करते हैं। सो लास्ट में आता है हमारा ऑडियो आउटपुट डिवाइसेस। जैसा कि आप सभी को पता होगा, आउटपुट डिवाइसेस वी कॉल स्पीकर एज ए आउटपुट डिवाइसेस। So we will be using speaker there. There are different type of speakers. So there are different type of microphone. There are different type of digital signal processor. So we'll discuss all those things in this video. So let's start step by step for each of the stage. So let's understand the audio flow in the AV system. So first of all, this audio system chains consist of five major elements, that is microphone, mixer, DSP, amplifier, and a speaker. So microphone act as a starting point by capturing the sound waves and converting it to the electrical audio signal. सो दोस्तों, यहाँ पे दो चीजें, एक चीज जो देखने वाली है, व्हाट इज साउंड एंड व्हाट इज ऑडियो। सो वी हैव टू फिगर आउट व्हाट इज साउंड एंड व्हाट इज ऑडियो। सो बेसिकली whatever we hear, that we call it sound, and whatever is processed by the electronic equipment, that we call it as a audio. So microphone takes our voice as a sound and convert it into the electrical signal, that we call it as a audio signal. So these signals are then sent to the mixer. If there are multiple microphones, so we will be requiring the mixer to take and to process all those microphone input in a mixer, and again that mixer will giving it to the DSP to process, to doing all those DSP functionality in that signal. So mixer के बाद DSP, and DSP के बाद amplifier में will give amplified audio level signal to the amplifier, and amplifier itself amplifies the line level signal to the speaker level signal, and it gives to the speaker. So जब हम बात करें माइक्रोफोन से जो सिग्नल कन्वर्ट होके इलेक्ट्रिकल में मिक्सर्स या डीएसपी को जाता है, दैट दैट गोज इन अ मिली वोल्ट। आई मीन ये कुछ 0.3 मिली वोल्ट से 2.4 मिली वोल्ट या 20 तक ही रहता है, या उसके अराउंड ही रहता है। और फिर जो लाइन लेवल सिग्नल डीएसपी से एम्पलीफायर में जाता है, दैट सम मोर वोल्टेज हैव ऑन इट, एंड अगेन दैट द सिग्नल which goes from amplifier to speaker that have more voltage on it. तो जैसे जैसे स्टेप्स बढ़ता है, वैसे वैसे सिग्नल का वोल्टेज भी बढ़ता है प्रोसेस में।
So we spoke about the microphone. Signal comes in the mixer, and from the mixer it goes to the DSP, where advanced processing like echo cancellation, noise detection, equalization, automatic gain control, and feedback suppression makes the sound clean and optimized for the room in which we are going to use. So all those processing elements are being used in the DSP to clean the audio, to make the proper gain control, to eliminate the feedback whatever coming from as a noise, so that it will make the audio signals as a clean as required for that conference room, for that room. Then the process audio is still is a low power, so it is led to the amplifier. So amplifier again it amplifies that audio signal, which strengthens the signal to the level that can drive the speaker. Finally, the speaker convert the amplified electrical signal back into the audible sound, delivering clear audio to the audience. So together, these devices form a complete path from sound input to sound output. So ये पूरा स्ट्रक्चर है कि ऑडियो ट्रेवल कैसे करता है फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन. So source, microphone, mixer, DSP, amplifier, then speakers. So these are the steps. So first we'll talk about the microphone. So as we already microphone, we call it as a transducer, which converts voice signal into electrical signal. So in AV devices, we use many types of microphone, as you already know that. So first microphone we use as a dynamic microphone. Dynamic microphone is a red microphone, reliable, that is best for live sound, music, loud sources. We use as a dynamic microphone where low sensitivity voice does not require to be heard and can be ignored, like in the music source, like in the cafe, like in the live sound environment, clubs, etc. So जहाँ पे भी लो सेंसिटिविटी वॉइस की को एम्पलीफाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वहाँ पे हम डायनेमिक माइक्रोफोन का यूज करते हैं. जैसे हम ईवी सिस्टम में वी कैन से एज इन द ऑडिटोरियम, where that instrument microphone we use, that instrument microphone, that vocal microphone comes as a dynamic microphone. But when we are using that microphone in the conference, that would be a different type of microphone, because there in the conference voice will be a very low, approx I mean 40 to 45 dB voice will be taking into the microphone. That time sensitivity requires more in the microphone. So dynamic microphone generally does not require uh, to be capture any low sensitivity voice. तो इसमें जो लाइव डायनेमिक्स माइक्रोफोन जनरली यूज एज ए लाइव साउंड, लाउड लाउड सोर्स, ऐसी जगहों पे हम क्लब्स, ऐसी जगहों पे हम यूज करते हैं. नेक्स्ट है हमारा कंडेंसर माइक्रोफोन. कंडेंसर माइक्रोफोन जनरली it has a very high sensitivity microphone. तो वट एवर जो भी लो वॉइसेस हमारी रहेगी, लो पिच की, आई मीन लो डीबी की, वो उसको कैप्चर करने में कैपेबल होता है. तो जैसे भी कोई कम बोलता है तो उसको कैप्चर करने के लिए एक हाई सेंसिटिविटी माइक्रोफोन की हमें रिक्वायरमेंट होती है. तो उस जगह पे हम कंडेंसर माइक्रोफोन यूज करते हैं, जैसे कॉन्फ्रेंस रूम सिस्टम्स, मीटिंग रूम्स, इन जगह पे हम कंडेंसर माइक्रोफोन का यूज करते हैं. सेकंड आता है कंडेंसर माइक्रोफोन. भी कई टाइप के होते हैं. talk in we'll talk later in another video. तीसरा है रिबन माइक्रोफोन. रिबन माइक्रोफोन जनरली हम अपनी ईवी सिस्टम में नहीं यूज होते हैं. इट इज एक्चुअली नोन फॉर वार्म टोन, मेनली यूज फॉर प्रोफेशनल म्यूजिक रिकॉर्डिंग. सो जनरली म्यूजिक रिकॉर्डिंग स्टूडियो में हम इसको यूज करते हैं. It does not use majorly in the AV system design.
So it is one of type of microphone. So we considered it in our PPT. Next is lavalier microphone. आपने ये देखा होगा कि जब भी कोई प्रेजेंटर या कोई ट्रेनर अपने शर्ट में ये ऐसा एक माइक्रोफोन, इस तरीके का एक माइक्रोफोन लगा के बना के अपने शर्ट में लगाता है और वो स्पीच बोलता है। तो इस तरीके के माइक्रोफोन को लेवलियर माइक्रोफोन या लैपल माइक्रोफोन बोलते हैं। तो ये स्मॉल क्लिप्स होती है माइक में, जो प्रेजेंटर और इंटरव्यूअर लगा लेता है। So ye also it is used in AV design where person presenter required to be freely movable, जहाँ पे लोगों को टहल के, जैसे प्रेजेंटर है कोई ट्रेनिंग दे रहा है, उसको मूव करके बात करनी है तो उसके लिए ये हम यूज करते हैं। ये माइक्रोफोन वायरलेस माइक्रोफोन्स होते हैं जनरली। जनरली क्या 99% केसों में ये वायरलेस माइक्रोफोन्स होते हैं। नेक्स्ट इज शॉर्ट गन माइक्रोफोन। शॉर्ट गन माइक्रोफोन, जैसा कि आप ये पिक्चर में देख रहे हैं, एक्चुअली ये क्या होता है कि ये जनरली आपने देखा होगा स्पीच इन्वायरमेंट में हम इसको यूज करते हैं, जैसे लाइव स्पीच इन्वायरमेंट में। ये हाईली डायरेक्शनल होता है। ये इसलिए इसको लाइव स्पीच इन्वायरमेंट, लाइव शूटिंग इन्वायरमेंट, इवन इन द फिल्म, इवन इन लॉन्ग डिस्टेंस कैप्चर करने के लिए हम शॉर्ट गन माइक्रोफोन का यूज करते हैं। बिकॉज इसकी पोलैरिटी जो है, कवरेज पैटर्न उसी तरीके का होता है। ये हाई डायरेक्शनल, वन वे हाई डायरेक्शनल ही होता है। नेक्स्ट इज बाउंड्री लेयर माइक्रोफोन। बाउंड्री लेयर माइक्रोफोन में आप देख सकते हैं कि ये इस तरीके का माइक्रोफोन है, एंड जिसमें ये भी हाई सेंसिटिव होता है, और इसको भी हम बोर्ड रूम, कॉन्फ्रेंस रूम, मीटिंग रूम जैसे एप्लीकेशन में यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है गूजनेक माइक्रोफोन। गूजनेक माइक्रोफोन इस तरीके का होता है, जिसको एज अ पोडियम माइक्रोफोन भी हम बोलते हैं, जो कॉन्फ्रेंस रूम और ऑडिटोरियम में पोडियम माइक की तरह यूज किया जाता है, और कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन डेलीगेट की तरह यूज किया जाता है। तो ये सारे माइक्रोफोन के टाइप्स हैं जो हम एवी सिस्टम्स में यूज करते हैं। अब इसमें भी सारे, अब इसको हैंडहेल्ड माइक्रोफोन है ये। अब इसको भी कॉन्फ्रेंस रूम में यूज करते हैं। इसमें माइक्रोफोन्स भी वायरलेस माइक्रोफोन्स होते हैं, वायर्ड माइक्रोफोन होते हैं। अब वायरलेस माइक्रोफोन में भी हैंडहेल्ड माइक्रोफोन होता है, जिसको हम हाथ से लेके बात करते हैं। देन लैपल माइक्रोफोन होता है, जिसको हम लगा के बात करते हैं, क्लिप। तो इस तरीके के माइक्रोफोन्स इसमें पाए जाते हैं। इवन गूजनेक माइक्रोफोन्स भी हमारे वायरलेस सीरीज में हम हमें देखने को मिल जाते हैं। तो ये फर्स्ट स्टेप ऑडियो डिवाइस का है, जिसमें हम माइक्रोफोन्स डिफरेंट टाइप के यूज करते हैं फॉर डिफरेंट एप्लीकेशन इन द कॉन्फ्रेंस रूम, ऑडिटोरियम, बोर्ड रूम, मीटिंग रूम, ट्रेनिंग रूम, सेमिनार हॉल, एनीवेयर वेयर द ऑडियो इनपुट डिवाइस इज रिक्वायर्ड। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑडियो मिक्सर। सो वट एवर जनरली if audio is coming from the microphone and it is going to the, it can either go to the DSP or mixer। मिक्सर हम वहाँ यूज करते हैं जहाँ पे डीएसपी में कुछ लिमिटेशंस होती हैं इनपुट डिवाइसेस की। अगर उस इनपुट से ज्यादा अपने को इनपुट माइक्रोफोन्स हैं, अगर माइक्रोफोन की क्वांटिटी उससे ज्यादा है, तो वहाँ पे हम मिक्सर मिक्सर जब यूज करते हैं जहाँ पे मल्टीपल माइक्रोफोन्स हो, 10, 20, 30, 40 ऐसे माइक्रोफोन्स की क्वांटिटी हो, तब वहाँ पे हम मिक्सर यूज करते हैं। So generally mixers also comes as an analog mixer, digital mixers and software based mixers। तो पहले बात करते हैं एनालॉग मिक्सर्स की। तो एनालॉग मिक्सर्स जनरली सिंपल मिक्सर्स होते हैं। ये हैंड्स ऑन कंट्रोल होता है, गुड फॉर स्मॉल वेन्यूज के लिए हम एनालॉग मिक्सर यूज करते हैं, जिसमें मल्टीपल वायर की रूटिंग होती है, वायर की जम्बलिंग ज्यादा हो जाती है फ्रॉम इनपुट डिवाइसेस टू द आउटपुट डिवाइसेस। तो नाउ डेज ये बहुत ही कम यूज होते हैं किसी भी डिजाइन में, ये भी है। नेक्स्ट आता है डिजिटल मिक्सर। ये इट हैज मोर कैपेबिलिटी देन एनालॉग मिक्सर।
एनालॉग मिक्सर्स में कुछ लिमिटेशंस होती हैं इनपुट डिवाइसेस की, इनपुट कनेक्टर का। इसमें मल्टीपल टाइप्स के कनेक्टर्स हम लगा सकते हैं। इट इज़ मोर एडवांस। ये मल्टीपल स्टोर्स भी सेट करता है। इसमें बिल्ट इन इफेक्ट्स मल्टीपल्स हैं। ये आइडियल फॉर मॉडर्न एवी सेटअप डिजिटल मिक्सर्स है। सो nowadays we use digital mixer because it can be controlled on a touch panel or any web based interface because it has a IP. So next is software mixer. Actually, software mixer is nothing but is a software which can be installed in any computer for virtual mixing and streaming. Actually, the purpose of mixer ensures that all the audio sources blend smoothly. So we'll terminate all the audio source in the mixer and will then route it to the other output devices. तो मिक्सर्स के बाद हम प्रयोग करते हैं DSP. DSP we call it as a digital signal processor. So in the digital signal processor, we have multiple type of digital signal processor in terms of multiple input output. किसी भी डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर में 4 इनपुट 4 आउटपुट का आता है, 8 इनपुट 8 आउटपुट का आता है, 16 इनपुट 16 आउटपुट का आता है। एंड दांते इनेबल्स। तो अभी के माइक्रोफोन्स में सॉरी अभी के डीएसपीज में दांते इनेबल्स डीएसपीज भी आने लगे हैं। जो कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये दांते प्रोटोकॉल्स पे काम करते हैं। तो ये एक सिंगल कैट 6 केबल पे ऑडियो को ट्रेवल करा सकते हैं थ्रू द नेटवर्क। फिर नेक्स्ट आता है GPIO VoIP enabled USB conferencing enabled digital signal processor। सो GPIO पोर्ट्स भी डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर में होते हैं, जो हम शेड अप डाउन ऑक्यूपेंसी सेंसर कैमरा ट्रिगर ऑल दोस थिंग्स के लिए यूज करते हैं। VoIP इनेबल्ड मतलब इसको हम टेलीफोन लाइन से भी कनेक्ट कर सकते हैं DSP को, और जो भी माइक्रोफोन इनपुट डिवाइस में हम कनेक्ट कर रहे हैं दैट कैन आल्सो बी यूज्ड एज अ टेलीफोन लाइन। सो VoIP इनेबल्ड DSPs भी आते हैं। Then we have another feature that is USB conferencing। so इसमें एक बेसिक यूनिक फीचर रहेगा USB का। USB पोर्ट रहेगा that is a host port। so it will convert all the input microphone signals to the in the USB। so there we can use this DSP can be used as a soft switch solution, where we can be able to use that input devices which will be get connected in the input of that DSP। तो ये काफी एक अच्छा फीचर है जिसमें that actually makes the environment as a hybrid environment। So hybrid means in terms of the local meeting can be performed from the same devices as well as the soft meeting. I mean virtual meeting also can be performed. Local meeting in terms of whatever person is sitting, whoever is sitting in that particular room can do the meeting locally. I mean whatever presenter or listener is there that will be in the room, as well as if the person wanted to join through the WebEx, Zoom, Teams, whatever platform it is, and can we join through this devices। और ये जो भी far end पे बंदा join करेगा, they can communicate with the same microphone। तो उसमें हम USB कॉन्फ्रेंसिंग का यूज करते हैं। तो ये DSPs जो हैं, DSP का जो प्रोसेसिंग है वो क्या करता है, इसमें इको कैंसलेशन करता है, वट एवर नॉइज विल बी देयर सो नॉइज रिडक्शन करता है, इक्वलाइजेशन करता है लो फ्रिक्वेंसी हाई फ्रिक्वेंसी को अपने हिसाब से मैच कराने के लिए, लेवल कंट्रोल करता है, रूटिंग एंड मिक्सिंग करता है, इनपुट एंड आउटपुट वट एवर इनपुट इज कमिंग एंड दैट विल बी गोइंग टू विच आउटपुट, ऑल दोस थिंग्स ये करता है। ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल करता है कि इस इनपुट का अगर ज़्यादा हो जाए, बहुत ज़्यादा हो जाए, पिच ज़्यादा हो जाए, तो उसमें ऑटोमेटिक ये गेन कंट्रोल करता है। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, ये फीडबैक सेपरेशन करता है। तो वट एवर फीडबैक इज कमिंग दैट सेपरेट।
that is suppressed by the DSP. तो जैसा कि अभी इसका मतलब ये है कि जब भी हम एक मान लीजिए एक टेबल माइक्रोफोन है, कम स्पीकर का हम यूज कर रहे हैं, तो जो भी स्पीकर से आवाज फार एंड की आती है, ये माइक्रोफोन से तो कैप्चर हो जाती है, बट ये डीएसपी से प्रोसेस नहीं होती है फार एंड को, द- जिससे कि उनका खुद का इको उनको सुनाई नहीं देता है। सो इसको बोलते हैं फीडबैक सब्सट्रैक्शन। सो ये एक इम्पोर्टेंट फीचर है जो कि ये डीएसपी के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। सो अगर हम बात करें तो डीएसपी इज द बैकबोन ऑफ द ऑडियो, व्हाट इट कॉल्ड ऑडियो इंटीग्रेशन। बिना डीएसपी के काफी कुछ अचीव करना नामुमकिन जैसा लगता है, नामुमकिन हो जाता है। Then so we were started from the microphone. The microphone gives the signal to the mixer. Then mixer's output comes in the DSP. तो अगर मिक्सर का हम यूज नहीं कर रहे हैं, मान लीजिए अब आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये छोटे छोटे इनपुट डिवाइसेस हैं, सॉरी इनपुट कनेक्टर्स हैं। तो अगर इससे ज्यादा इनपुट्स या माइक्रोफोन्स हमारे पास हैं तभी हम मिक्सर का यूज करेंगे। अगर इससे कम है, मान लो 5 है, 10 है, 12 है, 15 है, तो हम यहाँ पे इसी में डायरेक्टली माइक्रोफोन्स को कनेक्ट करते हैं जनरली। सो अगर इसमें कनेक्ट करते हैं तो मिक्सर बीच में नहीं आता, नहीं तो माइक्रोफोन से मिक्सर्स में, मिक्सर्स पे डीएसपी में, देन डीएसपी गिव्स लाइन लेवल आउटपुट to the amplifier. So now we discussed about the DSP. We'll come to the amplifier. So amplifier भी चार टाइप्स के जनरली होते हैं, जिसमें एक पावर एम्पलीफायर, एक इंटीग्रेटेड एम्पलीफायर, एक डीएसपी एम्पलीफायर, एक क्लास डी एम्पलीफायर। तो एक्चुअली जनरली हम क्लास डी एम्पलीफायर एंड पावर एम्पलीफायर ही यूज, पावर एम्पलीफायर, सॉरी क्लास डी एम्पलीफायर को पावर एम्पलीफायर भी हम कह सकते हैं क्योंकि ये पावर ड्राइव करता है। सो पावर एम्पलीफायर एक्चुअली ट्रेडिशनल एम्पलीफायर्स हैं जो पीए सिस्टम में यूज होते हैं। इंटीग्रेटेड एम्पलीफायर जो है ये कंबाइन प्री एम्प एंड पावर एम्प इन वन यूनिट, दोनों प्री एम्प एंड पावर एम्प दोनों ही एक ही यूनिट में होता है, तो उसको हम इंटीग्रेटेड एम्पलीफायर बोलते हैं। एंड डीएसपी एम्पलीफायर जो है, जिसमें एम्पलीफायर विद बिल्ट इन डीएसपी प्रोसेसिंग होता है, उसको हम डीएसपी एम्पलीफायर बोलते हैं। क्लास डी एम्पलीफायर होता है जो हाईली इफिशियंट होता है, लो हीट जनरेट करता है, और ये मॉडर्न इंस्टॉलेशन में यूज होता है। ऑल द कॉन्फ्रेंस रूम, बोर्ड रूम, मीटिंग रूम, सेमिनार हॉल, ट्रेनिंग हॉल, ऑडिटोरियम, वेयर वेयर वी कॉल इट, तो वहाँ पे हम क्लास डी एम्पलीफायर ही यूज करते हैं। Choosing the right amplifier ensures clean and powerful and distortion free sound. तो क्लास डी एम्पलीफायर में मल्टीपल चैनल्स होते हैं, मल्टीपल चैनल्स में मल्टीपल लोड्स होते हैं। सो हम बेस्ड ऑन द स्पीकर रिक्वायरमेंट, स्पीकर क्वांटिटी एंड स्पीकर लोड we calculate the which what type of what channel and how much voltage, how much load we require in the amplifier. So based on the speaker we choose the amplifier. तो वो भी मैं एक नए वीडियो में, एक अनदर वीडियो में मैं बना दूंगा कि कैसे हम एम्पलीफायर चूज करते हैं या स्पीकर चूज करते हैं बेस्ड ऑन द सोल्यूशन, बेस्ड ऑन द सिचुएशन। तो एम्पलीफायर ये सिग्नल्स एम्पलीफाई करके ये स्पीकर्स को देता है। दैट इज आल्सो लाइन लेवल सिग्नल विच गोज टू द स्पीकर्स, जो कि ड्राइव कर ले उनके ऊपर को, ड्राइवर्स को। So we'll talk about now the speakers. The speakers generally are, are the ceiling speakers, जो ceilings में इंस्टॉल होते हैं। इसमें भी कई टाइप के आते हैं, ये जिसमें बैक केन होता है, जिसमें बैक केन नहीं होता है। बैक केन मतलब ये आप देख रहे हैं पीछे, ये प्लास्टिक, ये मेटल्स का बैक केन है, जो कि फॉल सीलिंग के नीचे अंदर लग जाता है, वो दिखाई नहीं देता है। बस इतना ही पार्ट आपको, जो राउंड सा दिख रहा है, इतना ही पार्ट आपको दिखाई देगा इंस्टॉलेशन के बाद। सीलिंग स्पीकर में ऊफर साइज डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, इनका वाटेज डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है। जनरली सीलिंग स्पीकर 2.25 इंच से स्टार्ट होते हैं, 3.25 इंच, 4 इंच, 5.25 इंच, 6.25 इंच, 8 इंच, 10 इंच तक के सीलिंग स्पीकर हम जनरली यूज करते हैं फॉर द ईवी सिस्टम। सो इसमें जनरली बात करें हम तो 2.25 इंच जनरली 16 वोल्ट से या 20 वोल्ट से स्टार्ट होता है। देन 3.25 इंच
सेम वाटेज होती है, 20 वोल्ट से स्टार्ट होता है। 4 इंच अगेन आप कह लो इसको 30 वोल्ट, 30 वाट से स्टार्ट होता है। 5.25 इंच 30 वाट से स्टार्ट होता है। 6.25 इंच 60 वाट, कोई कोई OEM 30 वाट से भी स्टार्ट करता है। सो 8 इंच, सो अगेन 100 वाट। सो ऐसे इट इज डिपेंड ऑन द OEM की किस तरीके से उन्होंने कैलकुलेट किया है। सो इस तरीके का नॉर्मल एक वाटेज रेंज है एज पर द वूफर साइज। सो सेम वे वॉल स्पीकर्स को हम वॉल पे लगाते हैं, पिलर्स पे लगाते हैं। सो वॉल स्पीकर्स आल्सो comes in different woofer size and different watt load. Next is column speaker. कॉलम स्पीकर जनरली हम डायरेक्शनल और साउंड थ्रो करने के लिए यूज करते हैं एक ही डायरेक्शंस में। सो इस तरीके के कॉलम स्पीकर होते हैं, इसमें भी ऊपर साइज डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो 8 ऊपर साइज 2.25 का, 16 ऊपर साइज 2.25 का। ये एक्चुअली थोड़ा इसमें वाटेज ज़्यादा होती है क्योंकि ये हाई स्पीकर्स होते हैं, इसको ऑडियो को थ्रो करना होता है काफ़ी ज़्यादा दूरी तक। तो इसमें 100 वाट 200 वाट तक के स्पीकर्स होते हैं। सेकंड आता है लाइन एरे स्पीकर, जो कि हम ऑडिटोरियम में यूज़ करते हैं। और इसमें भी डिफरेंट टाइप के, डिफरेंट ऑफर साइज के, डिफरेंट लोड कैपेसिटी के, डिफरेंट व्हाट इट कॉल कवरेज एंगल के लाइन स्पीकर होते हैं एज पर OEM डिपेंडेंट। सो सब ऊपर, देन हम लो हाई फ्रीक्वेंसीज के लिए हम सब ऊपर यूज करते हैं। सॉरी, लो फ्रीक्वेंसीज के लिए हम सब ऊपर यूज करते हैं। ये भी डिफरेंट साइजेस के आते हैं। इनका वाट कंपेरेटिवली लाइन एरे स्पीकर से इनका वाटेज ज्यादा होता है। ये कम से कम 1500 वाट, 1800 वाट, 2000 वाट के स्पीकर होते हैं। इस टाइप के सब वूफर और इस टाइप के लाइन एरे जनरली हम ऑडिटोरियम या बिग इन्वायरमेंट वेयर ऑडियो सिस्टम इज रिक्वायर्ड वहां पे यूज करते हैं। साउंड बार जनरली हमारे में यूज नहीं होता है। साउंड बार जनरली हमारे EV सिस्टम में यूज नहीं होता है, बट ये भी दैट आल्सो कम्स इन अ प्रोफेशनल सीरीज। सो वी डिस्कस्ड अबाउट द साउंड वेव। ये साउंड बार एक्चुअली इसका एक आउटपुट, इसमें एक ऑडियो इनपुट होता है जो कि हमारे एम्पलीफायर, सॉरी DSP और मे बी टीवी और मे बी एनी ऑडियो आउटपुट डिवाइसेस से इसमें लाके दे देते हैं, और जो भी ऑडियो वहां से आता है इससे प्ले होता है। So these are the types of the speakers which generally are used in the conference room solutions, AV, generally which are used in the AV integrations, AV systems. So ceiling speakers generally made for meeting rooms solutions, distributed audio room. Wall speaker used in conference room and classroom solutions. कॉलम स्पीकर जनरली या लॉन्ग थ्रो के लिए आइडियल फॉर टाउन हॉल्स, वर्शिप प्लेसेस। लाइन एरे स्पीकर्स हाई परफॉर्मेंस के लिए, लार्ज वेन्यू के लिए एंड कॉन्सर्ट टाइप एप्लीकेशन के लिए। सब ऊपर हैंडल्स लो फ्रीक्वेंसी, बॉस साउंड इसमें ज़्यादा होता है। एंड साउंड बार आल्सो कम्पैक्ट सोल्यूशन फॉर AV स्मॉल स्पेसेस, जैसा कि मैंने बताया। So to conclude it, each audio devices plays a unique role in creating a complete sound system. Microphone capture the audio, mixer blend sources, DSP process and enhance sound, amplifier power the speakers, and the speakers deliver the clear audio to the audience. So understanding these components help us design reliable and high quality audio systems. बेसिकली ये ओवरव्यू है ऑडियो सिस्टम्स का, ऑडियो डिवाइसेस का, जो कि हम यूज करते हैं जनरली अपने डिजाइन सॉल्यूशंस में। कोई भी आपको क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।